So hello guys, today is the lecture on DI caselets. Caselets by themselves are basically a paragraph or some data that you have been given in written form. तुम्हें उससे खुद तुम्हारे डेटा का सेट बनाना है. You'll have to use that paragraph, use those words by yourself to make your own data का paragraph. Caselets generally the caselets come in form of only a paragraph, but sometimes they are accompanied. Sometimes that's very rare. Sometimes they are accompanied by a pie chart or a graph, and also a table sometimes. But most of the times it's only a paragraph. As you'll see in today's lecture, सारे जो क्वेश्चन है they are all just paragraphs. You'll have to make your own data set out of them. तुम्हें वो खुद से ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा. Okay? So yeah, first this table wala question, since a lot of people are facing problem in doing this, we'll solve this and then we'll move on to all the caselets for today. Now I need you guys to understand DI में main तुम्हें क्या है? What is the main thing about DI? What are you trying to find? Are you trying to find the proper way or are you trying to just find the answer? Tell me. The answer, right? So does it matter कि तुमने किस तरीके से आंसर लाया? Does it at all matter कि तुम कैसे आंसर ला रहे हो? No. So that is the whole point behind today's set कि you don't have to care कि किस तरीके से आंसर आ रहा है. See, what is the average mark scored by all students in physics? उनके एवरेज मार्क्स ढूंढने हैं ना. सो द फास्टर वे टू डू दिस, सब बहुत लोगों ने ऑनेस्टली किया कि दे एक्चुअली फाउंड आउट द नंबर्स. आई सॉ द वर्किंग ऑफ मेनी पीपल, दे एक्चुअली फाउंड आउट कितने मार्क्स एंड देन उसका एवरेज लिया. व्हाई डू यू हैव टू? फिजिक्स के सारे मार्क्स आउट ऑफ 75 है ना, एंड ये सब उनके परसेंटेजेस हैं. सो व्हाट इज द बेस्ट वे? ये परसेंटेजेस का एवरेज निकालो एंड जितना एवरेज परसेंटेज है ना, फाइंड इट आउट ऑफ 75. मतलब समझो अगर एवरेज परसेंटेज आ गया 60, so the average marks will be 60 out of 60% of 75. Exactly. And total percentage की जरूरत नहीं. total percentage में 600 मत कर वेद. You go wrong there. Use my averages का tricks here. Did anyone use मेरा averages का trick? किसने मेरा average का trick use किया यहाँ पे? Good Dhaval. चलो, we use my average का trick. Let's take the assumed average as what? 65 ले लेते. चलो. 65 ले लेते हैं assumed average. So this is what? Plus 19 plus 3 plus 7 minus 17 plus 5 and ये क्या है? minus 9. तो टोटल प्लस कितने हो गया? 12 15 15 34 प्लस 34 हो गया एंड माइनस कितना? minus 26. minus 26. So how much is that? Plus 34 minus 26 is plus 8. We'll divide it by 6. तो क्या आ गया? 1.33. So हम 1.33 इसमें ऐड कर देंगे. हमारा जो assumed average था ना, उसमें 1.33 ऐड कर देंगे. So what is the average? 66.33. So now you have to simplify 66.33% of 75. 3 4 4 को सीधा इसमें से कैंसिल कर दो. ये 3 है ना, तो 4 into 1 8 18.8 इतना आ जाएगा अंदाजे से. 18.8 into 3 कर दो. What is 18.8 into 3? बोलो कोई. जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं इतना. और फिर नहीं. लेट्स चेक. बोलो तुम लोग को आंसर क्या आ रहा था इसमें? अरे क्या तुम लोग, इधर 16 आएगा. 16.6 मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग मान भी रहे हो. 16.6 है. किसी ने करेक्ट भी नहीं किया मुझे. वाह 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 वाह. 16.6 into 3, that is
49.8। अब बोलो 49.8 आ गया, कौन सा ऑप्शन हुआ? ए। इतना कहां से टाइम लग रहा है तुम लोगों को इसमें? इट्स वेरी सिंपल सम। आगे का देखो, सारा कैलकुलेशन इसमें बहुत सिंपल है, बट सबका बस तरीका है अंडरस्टैंडिंग का। व्हाट इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट एफ इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर? इसका समझो, बहुत ध्यान से समझो गाइस। स्टूडेंट एफ का सारे सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स ढूंढना है। ओके, नाउ विच आर द वंस विच कैन बी क्लब्ड? ये देखो, ये दोनों आउट ऑफ 75 है ना? These are both out of 75, so I can club these. अगर मैं इन दोनों को एक ही सब्जेक्ट ले लूं, if I take it as one subject only, तो as a one subject it will become इन दोनों के बीच में 56 और 66 के बीच में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात गाइस? It will be 61% out of 150. Did everybody understand this? ये 61% out of 150 कैसे आया? तो ये आ गया 61% आउट ऑफ 150। बाद में ये 150 है, ये 150 है, 61 66, तो वापस मिडिल पॉइंट ले लेंगे। दैट इज हाउ मच? 61 और 65 का मिडिल पॉइंट क्या आएगा? 63। सो दैट इज 63% आउट ऑफ 300। समझ रहे हो मेरी बात? 63% आउट ऑफ 300 मिल गया हमें। तो पहले वो ढूंढ लो, व्हाट इज 63% ऑफ 300? 189। बाद में 55% ऑफ 210, दैट इज 110, एंड 76% ऑफ 50, मतलब 76 का आधा कर दो, दैट इज 38। नॉर्मल एडिशन है। 7 1 3 1 3 337। बोलो इसको कितना टाइम लगा? डिड एनीवन डू इट बाय दिस मेथड? किसी ने भी ये मेथड यूज किया था क्या? ये वाले मेथड में कितना टाइम लगा? How much time does this method take? Barely anything. तुम लोग को सिर्फ पागल की तरह सॉल्व नहीं करने लगना है। You have to understand these are the numbers which will be your point of reference. क्या धवल सोचा है तो मेथड करने का ना। ऑलवेज ट्राई और ऑलवेज एक्सपेरिमेंट न्यू मेथड्स। जब तुम्हें ऐसे नंबर्स दिए ना 75 75 250 150, अंडरस्टैंड अगर दो है तो उन दोनों को हमेशा क्लब कर देने का। अगर ये दोनों मिलके 150 बन गया तो उनको इनके साथ क्लब कर देने का। बाद में ये 200 का परसेंटेज निकालना इजी होता है, एंड ऑल्सो 50 का परसेंटेज निकालना इजी होता है। टू रिमूव एनी परसेंटेज आउट ऑफ 200, समझो अगर 67 है, 67% ऑफ 200 बोला है ना, तो सीधा 67 का डबल कर दो, 134। एंड समझो अगर 68% ऑफ 50 बोला है, तो सिंपली 68% का हाफ कर दो, दैट इज 34। ये समझा तुम लोगों को कैसे आया ये 50% एंड 200% का लॉजिक? हाँ गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस होल? ऐसे ट्राई करो तो सम्स तुम्हारे बहुत फास्ट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी? स्टूडेंट बी के ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ढूंढने हैं ना, वी विल यूज द सेम मेथड। इन दोनों का एवरेज कितना हो गया? अच्छा 338। रुको, तो मेरा कुछ इधर, रुको देखता हूँ कैलकुलेशन में। 56 61 प्लस 5 61 61 66। अरे क्या तुम लोग 61 66 है, मैंने तो 65 लिया था, सो इट हैज टू बी 63.5। 63.5 इंटू 3 करना पड़ेगा, so that is 191.5 190.5। so 190.5 plus 110 plus 38, 338.5। दिस इज द आंसर गाइस। वहां पे वो 66 की जगह में 65 ले लिया था। 65 नहीं है, 66 है। समझा धवल? धवल, डिड यू अंडरस्टैंड?
वो बस अपना लोचा हो. The method is perfect. The method is absolutely perfect. चलो विल डू बी वाले का ओवरऑल मार्क्स ढूंढना है ना, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स. वी विल डू इट बाय द सेम मेथड. ओके, पहले इन दोनों का देखो. 68 64 क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी 68 64 का मिडिल पॉइंट, क्योंकि दोनों का बीच में ही करना है. 66. अब ये 66 है और ये 52 है, तो दोनों का वापस मिडिल पॉइंट ढूंढ लो. 14 है तो इसमें ऐड कर दो 7, दैट इज 59. सो 59% ऑफ 300, 59% ऑफ 300 करना है. कैसे करोगे? 59% ऑफ 300 इज 187. 187 में 177. हिमांत कैलकुलेशन सुधार. $177. बाद में नाउ विल डू द 200 का. 49% ऑफ 200 टोटल कितना हो गया? 49% ऑफ 200 इज 98 एंड 74% ऑफ 50 इज 37. टोटल कर लो, कितना आया टोटल? व्हाट इज द टोटल गाइस, बोलो. नाइनटीन 28 31 312. हेमंत तेरा दूसरा मिस्टेक हुआ आज का, दूसरा मिस्टेक. 312 आएगा. ओके, सो नाउ इट्स 312. अब 312 डिवाइड बाय टोटल कर दो. इनका कितना? 150, इसका 150, 300 300 500 550. तो 550 एंड 312. अब ये भी करने का बहुत सिंपल तरीका है. यू डोंट हैव टू एक्चुअली फाइंड इसका परसेंटेज. हाँ, इसका परसेंटेज तुम कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द परसेंटेज फॉर दिस गाइस, बोलो. टेल मी इफ आई से 47%, व्हाट डज 47% मीन? इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन यू राइट 47%? नहीं, परसेंटेज को कैसे लिखेगा तू? अरे एग्जैक्टली 47/100 बराबर. तो बेसिकली इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी चीज को परसेंटेज की जगह पे डिवाइड बाय 100 कर दूं, या फिर समझ अगर मैं 67/100 लिखूं, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 67%. सही है. तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 100 बना दूं तो मेरा जो ऊपर बचेगा दैट विल बी माय आंसर. समझ रहे हो गाइस? अगर मैं मेरे डिनोमिनेटर को 100 कर दूं तो जो ऊपर बच गया वो मेरा परसेंटेज आंसर होगा. सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर 100. कैसे करेंगे? ऊपर नीचे दोनों 11 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 50 एंड इधर 27.4. एंड नीचे 50 है ना, तो दोनों जगह ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. समझ रहे हो गाइस मेरी बात? तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 एंड ऊपर क्या हो गया? 54.8. तो रुको, मेरा उधर थोड़ा गलती है. 22.8, अरे 9, सॉरी 92, 28.4 आएगा. 28.4. So this will become how much? 56.8. Guys, ये समझा मेथड कैलकुलेशन का? How did I find the percentage very fast? Tell me, is this not like 10 times better than actually finding the percentage? Just make the denominator 100. Just make the denominator 100. तुम्हारा आंसर immediately आ जाएगा. समझ रहे हो guys? Also, Vaibhavi, since you are new, you will find this a little difficult. Vaibhavi, आप online है ना? Vaibhavi, you will find this a little difficult, but slowly you will catch on to this. As soon as you see my previous lectures, all of those, you will start understanding all of this much better. Okay? Yeah. Please go on mute. Yes. Approximate पूछा है ना? So this is our answer. 56.8 is the actual value. Yes, Raj, यही मेथड से करना है सॉल्व. You always have to find such calculation methods. चलो
The marks scored by student C in physics, what percentage of scored by him in English? ये देखो, उसका फिजिक्स और इंग्लिश, सी का फिजिक्स में 72 एंड इंग्लिश में 64. सी का फिजिक्स में 72 है ना, तो इसका मार्क्स कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा. 72 का 3/4 ढूंढो. इफ यू वांट टू फाइंड 72 परसेंटेज ऑफ 75, so you will simply do 72 का 3/4. 72 into 3/4. 18 into 3, that is how much? 54. 54 is how much percentage of? 54 is how much percentage of? 64 percentage of 150. कैसे करेंगे? 64 into 1. समझ रहे हो गाइस? 64 into 1.5 क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ, समझा तुम लोगों को? So I will just add 32 to this. तो कितना हो जाएगा? 96. So now very simply understand, it's 54 out of 96 ना. अगर 100 होता तो एग्जैक्ट 54 परसेंटेज होता. अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो मतलब क्या होगा? 54 से थोड़ा ही ज्यादा होगा. समझ रहे हो मेरी बात? इट हैज टू बी हायर देन 54. हो गया तुम्हारा आंसर 56. समझे गाइस कैसे आया? गाइस ये समझा मेथड? ओके हितेश, समझ. अगर what we have 54 upon 96 ना, if this was 54 upon 100, तो what would be my answer? कितना परसेंटेज हो जाता? अगर 54 upon 100 होता तो कितना परसेंटेज हो जाता? 54. तो नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो मेरा ऊपर वाला वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा ना. इफ द डिनोमिनेटर रिड्यूसेस माय ओवरऑल वैल्यू इंक्रीजेस. बट नीचे कितने से कम हुआ है? बेयरली 1% से कम हुआ है. तो मतलब ऊपर का वैल्यू थोड़ा ही ज्यादा होगा. समझ रहे हो मेरी बात हेमंत, हितेश? So that is how we find calculations very fast. That is how we speed up our calculations very much. बाद में ऑप्शन यूज करने का. So you got the answer as 56. And finally, the last one. What is the difference between total marks scored by D in chemistry and English? Chemistry and English का D का marks total करना है. And obtained by F in the same subject. अच्छा, तो सिंपल कैसे करोगे? अगर ये 82 है, ये 70 है, बोलो कैसे करोगे गाइस? What is the fastest way to do this? बोलो जल्दी कोई. जल्दी गाइस बोलो. What is the fastest way to do this? कॉमन क्या लेगा धवल? कॉमन. डोंट मेक इक्वेशंस. तू बहुत इक्वेशंस बनाता है. सिंपली यू डू द सेम थिंग. 82 का 3/4 कर. और व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय डी एंड एफ ना? सेम सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स बदल रहे हैं क्या? आर द सब्जेक्ट्स चेंजिंग? हेमंत वो भी जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट्स बदल रहे हैं क्या? बोलो. नहीं. तो मैं सिंपली अगर इसका डिफरेंस ले लूं एंड इसका डिफरेंस ले लूं एंड दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली धवल, यू आर राइट. विल माय आंसर बी द सेम? अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं एंड इनका डिफरेंस ले लूं एंड डिफरेंस को ऐड कर दूं. समझ रहे हो गाइस मेरी बात? समझा सबको गाइस? सो इनका डिफरेंस कितना हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 16. 16 परसेंटेज आउट ऑफ 70 का 3/4. सो दैट इज 12. इसका डिफरेंस है 12 एंड इसका डिफरेंस कितना है? 4% इंटू 1.5. सो कितना हो गया? 6. सो द ओवरऑल आंसर इज 18. समझा सबको गाइस? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? गाइस अब बोलो, ये पूरा सेट को कितना टाइम लगना चाहिए था?
I legit by myself when so every set that I send you, I solve it after I send it. I check के बराबर है नहीं, and then I send it to you. मुझे इसको legit सिर्फ 2.5 मिनट लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको. बोलो, was this doable or not in 2.5 to 3 minutes? बहुत doable है guys. तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो. Start thinking simple. सुदीप, मुझे आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं ना, एक बार इस रिकॉर्डिंग देखे, अगर नहीं समझा तो देन यू कैन ऑलवेज ऑब्वियसली टेक्स्ट मी. यस आकाश, वो क्लब करने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये कब होगा? व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दिस, व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली लुकिंग एट नंबर्स एंड सॉल्विंग बाय डिफरेंट मेथड्स ना, तब तुम्हें समझेगा अच्छा ये सिमिलर नंबर्स है, मैं इनको क्लब कर सकता हूँ. वो तुम रोज देखते रहोगे ना तो होगा. इसीलिए मैं इतने अलग अलग टाइप के तुम्हें सम्स भेजता हूं. ओके, नाउ विल सॉल्व आज का सेशन. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मंडे टू फ्राइडे, वो बाद में लेंगे, पहले सेकंड वाला ले लेते हैं. दिस इज अ वेरी नाइस सम, क्योंकि आज तुम लोग थोड़ा जरा मस्ती के मूड में हो. ओके, अब दिख रहा है गाइस सबको? कैन एवरीबॉडी सी इट? Okay, well, I'll just keep this down. बाद में ये देखते हैं. An organization consists of 2,400 employees on different departments. That's marketing, HR, IT, and accounts. IT, production and accounts. देखो 5 से ज्यादा हो गए ना, इसका मतलब इसका टेबल बनेगा. अगर 5 से ज्यादा हुए ना तो हमेशा समझ लो कि टेबल ही बनेगा. एंड ब्रेकडाउन क्या दिया है मेल्स और फीमेल्स का? 5:3, ये वो. हाँ, सो इट्स अ बेसिक वेरी सिंपल सम. हम क्या करेंगे? we'll start breaking this down into males and females. हम बोलेंगे ये साइड पे सारे हैं मेल्स, इधर है फीमेल्स, इधर वो डिपार्टमेंट आ गया. कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 5. एंड इनका टोटल. एंड डिपार्टमेंट्स कौन से है? HR, मार्केटिंग, IT, प्रोडक्शंस, अकाउंट. HR, मार्केटिंग, IT, प्रोडक्शंस एंड अकाउंट. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. हमें टोटल कितना दिया है? 2,400. ये वाले में दिस इज गाइस वेरी मच लाइक LR सम, बिकॉज इसमें तुमने टेबल सॉल्व कर दिया ना तो तुम्हारा पूरा आंसर आ जाएगा. बाकी तुम्हें बाकी को ढूंढने की जरूरत नहीं है. द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज 5:3. तो मेल इज टू फीमेल 5:3 है. तो वी विल डिवाइड दिस बाय 8, तो 300 आ गया. तो ये हो गया 1,500 एंड ये हो गया 900. बाद में 12% ऑफ मेल्स वर्क इन द HR डिपार्टमेंट. 12% of males work in the HR department. So that is 150 plus 300. Sorry, 150 plus 30, that is 180. बाद में 24% of the females work in accounts department. 24% of females work in accounts. So हम basically 24 into 9 कर देंगे. That is how much? 216. बराबर गाइस? ये तुम्हें 24 into 9 का टेबल आना चाहिए. इसमें मैं मदद नहीं कर सकता. The ratio of males to females work in HR department is 6:11. सही है? Males is to females in HR department is 6:11. ये अगर 6 है, ये अगर 6 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? If this is 6, so this has to be 11. So this is 30 into 6, so 30 into 11, that is 330. 1/9 of the female workers work in the IT department. So मतलब आ गया 100. 42% of males work in production department. 42 into 15.
कैसे करोगे? 420 प्लस 210 दैट इज 630. अच्छा केशव ने किया है पहले? नो आइडिया. 630. बाद में नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 10% ऑफ द मेल्स वर्किंग इन द सेम. तो आ गया 63. तो इधर कितना आ गया गाइस? व्हाट विल बी दिस नंबर? यू विल स्ट्रेट अवे ऐड दीस अप एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम 900. कितना आ गया? 330, 430, 493, 693, 699, 709, 709 एंड इधर कितना बच गया? 900. तो 900 माइनस 709 करो. 191. गाइस तुम लोग एडिशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? तुम्हारा एडिशन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है. होप इज माय ट्रिक हेल्पिंग फॉर एडिशन जो स्पीड मैथ्स वाला है? चलो. द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट इज 285. तो ये आ गया 185. 22% of males work in marketing department and remaining in accounts. 22% into 15. तो क्या करेंगे? 220 plus 110, 330. वापस इसका टोटल ढूंढो. 960, 1060, 1065, 1065 plus 80, 1145, 1145, 1245, 1325, 1325 minus 1500. मतलब 1500 माइनस 1325 कितने बच गए? 175. परफेक्ट. अब बोलो गाइज, अब ये सम सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ होनी चाहिए तुम लोगों को? कितना टाइम लगा ये पूरा करने को? पूरा टेबल बनाने को कितना टाइम लगा? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट. चलो मैक्सिमम 2 मिनट. उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए टेबल बनाने को. बट द ओनली थिंग इज कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस जस्ट अ बेटर कैलकुलेशन मेक्स? अगर सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट है ना तो टेबल कितना फटफट बन जाता है. चलो we'll jump out to the questions. The number of males working in IT department form approximately what percent of total number of people in the organization? Males in IT department 185 upon 240. So 24 is 1% ना. So 24 के हिसाब से ढूंढ लो. 24 into 10 किया तो नहीं होगा. 24 into 5 किया तो भी नहीं होगा. 24 into 5 बहुत कम हो जाएगा. So it has to be 24 into 8. समझ रहे हो? 24 into 5 क्या हो जाएगा? 120. एंड 24 into 10 हो जाएगा 240. तो दोनों के बीच में ही होगा. दोनों के बीच में एक ही वैल्यू है. गाइस डिड यू अंडरस्टैंड कैसे ढूंढना मैंने? 8% इतना फटाफट. मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ा दिमाग यूज किया कि कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती. हाउ मेनी मेल्स वर्क इन द अकाउंट डिपार्टमेंट? मेल्स अकाउंट 175. नन ऑफ दिस. Total number of employees working in accounts department form what percent of total number of employees working in the organization? Total employees in account department. Account department का total कर लो. 675, 16, 91, 391. 391 कितना हो जाएगा? 15% से थोड़ा ज्यादा ना, because 15% is how much? 360. 360 is 15% and अपना कितना है? 391. तो 16% will be how much? 384. 384 से थोड़ा ही ज्यादा, तो 16 से थोड़ा ज्यादा होगा. That is this one. समझ रहे हो गाइस? आई एम स्टिल नॉट कैलकुलेटिंग. मैं स्टिल कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं बस अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं. ये समझ रहे हैं सबको गाइस? अभी तक मैंने कैसे पहले वाला ढूंढा 16.29%. The number of females in production department is what percent of total females in the organization? Females in production 63, that is 7%. 7% सीधा मिल गया. 9 into 7 होता है ना, तो 63, 7%. And finally last one, what is the total number of females working in HR department and marketing department together? Females in HR and marketing, that is how much? 430 plus 91, 431, 521. Direct answer guys.
एक बार बोलो, टेबल ढूंढने के बाद क्वेश्चंस ढूंढने में कितना टाइम लगा? पूरा टेबल मिल गया, बाद में क्वेश्चंस को कितना टाइम लगा? पर क्वेश्चन 20 सेकंड जितना, 1 मिनट, चलो 1 मिनट, टोटल 1 मिनट समझ लो। सो टोटल ये क्वेश्चन कितना मिनट्स के वर्थ था? हाउ मच वाज दिस ओवरऑल क्वेश्चन वर्थ? पूरा सेट, एग्जैक्टली पूरा सेट 4 मिनट में तुम्हें आ सकता है, क्योंकि 2 मिनट तो हमें टेबल बनाने में लगा, एंड ऊपर से मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने को लगेगा, 4 मिनट मैक्सिमम। तो तुम्हें आज के क्वेश्चन में 8-8 मिनट क्यों लग रहा है? हाँ, इधर तो सब तुम लोग हाँ हाँ करते हो, आज के क्वेश्चन में तुम्हें 8 मिनट क्यों लगा? इधर तो सब हाँ हाँ करते हो। चलो, सेम थिंग गाइस, विल अगेन डू द सेम ईयर, पूरा टेबल बना लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता टेबल बनाने में। ऑल्सो गाइस अंडरस्टैंड ना कि तुम्हें, you can follow either of two approaches, either you can go on to the question. What I suggest in caselets, मैंने most of the time देखा है caselets में तुम्हारा information almost पूरा होता है, you almost have सारा information fulfilled, मतलब तुम्हारे वो blocks नहीं रह जाते, जैसे fill in the blanks में होता है ना, वैसा नहीं रहते। So that is why I always suggest making the caselet का table. But if in case you guys are stuck कि table में ऐसा आ गया कि incomplete information है, डोंट रन बिहाइंड फिनिशिंग द टेबल, ओके? वो लोग कभी कभी, रेयरली बट कभी कभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रन और गेट वरीड, वो हो जाएगा, क्वेश्चंस में हो जाएगा। चलो, we'll move on to the next one. A school consisting of 15-60 students has boys and girls in ratio 7:5, all enrolled in different type of hobby classes, singing, dancing, painting. 1/5 of boys are enrolled in dancing. ये भी सेम टेबल बनेगा, बराबर गाइस? अगर तुम्हें ये बॉयज गर्ल्स का रेशियो नहीं दिया होता ना, तो हम वेन डायग्राम बनाते थे, वेन डायग्राम ये जो होता है ना, ये बनाते थे। बट वी हैव 2 पैरामीटर्स इन बोथ, तो मैं हर सर्कल को आधा आधा तो काट नहीं सकता, सो वापस इसमें टेबल बनेगा। समझ रहे हो गाइस? तुम्हें क्वेश्चन के 2-3 लाइन में ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या बनेगा, टेबल बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, कि क्या बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ग्रेट, चलो, सो सेम बॉयज गर्ल्स, एंड इसको 3 क्लासेस में बांट देंगे, डांसिंग इन तीसरा वाला जो भी था, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एंड इधर आ जाएगा टोटल। We have been given total as 15-16. Boys to girls in the ratio 7:5. So 12 से डिवाइड कर दो, 12 से कितना आ जाएगा? 130. So 130 into 7 and 130 into 5, 650, 900, 910. बाद में लिखते हैं। All students, स्टार्ट लिखा है मैंने। All students enroll in different type of hobby classes, singing, dancing and painting. 1/5 of boys are enrolled only in dancing class. बोलो, बोलो जी, 1/5 of boys are enrolled only in dancing, only in dancing ना? हाँ, कितना हो जाएगा 1/5? 182। बाद में 20% of girls are enrolled only in painting class, only in painting, 130. 10% of boys are enrolled only in singing class, 91. 24% of girls are enrolled in singing and dance class together. 24% are singing in singing and dance class together. Okay, how do you do this guys? या फिर ना इसमें ऐसा करते हैं, a better way to do this will be, क्योंकि इसमें दोनों का टुगेदर इक्वल दोनों दिया है,
So we will have to make two Venn diagrams. ये थोड़ा जरा त्रासदायक समय है गाइस, इसमें दो Venn diagram बनेगा तुम्हारा. एक बॉयज का एंड दूसरा गर्ल्स का. गाइस समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस? हाँ गाइस, बिकॉज इसमें क्या होगा, दोनों का टुगेदर वाला बहुत बार दिया है ना, तो इसीलिए हमें वो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. बट इसमें दो वेन डायग्राम्स बनेगा, एक नहीं. तो दिस इज काइंड ऑफ अ रेयर सम. सो बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितने हैं? मैं थोड़ा बाजू में लिख. दिस इज बॉयज, दिस इज गर्ल्स. बॉयज आर हाउ मेनी? 910. गर्ल्स आर 650. एंड इसमें से ले लेते हैं सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग. तो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग दोनों जगह पे सेम रखने का गाइस. सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग. अब देखते हैं. 1/5 of boys are enrolled only in dancing class. Only dancing, तो 1/5, 182. 20% of girls enrolled only in painting, 130. हाँ, ये वेन डायग्राम से फास्ट फास्ट होगा. 10% of boys enrolled in only singing, 91. Yes, only is the keyword, Dhaval. Only is very important. 24% of girls are enrolled in singing and dance class together. 24 are involved in singing and dance class together. इसका मतलब क्या? गाइस बोलो, सिंगिंग एंड डांस क्लास टुगेदर. तो इसमें कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? ये 5 पार्ट्स आ जाएंगे. जहां जहां सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों है ना, वो आ जाएंगे. वेट, ये 5 नहीं, ये 4. But it will be this part, this part, this part and this part. ये चारों का मिलके 24% होगा. 24% will be how much? 156. So 156 is D and S together. ये समझ रहे हो guys? Did you understand ये 4 कैसे आए? No, not center part, Sudeep. Sudeep, not center part. Be very careful. Chalo. The number of girls enrolled in only singing classes is 200% of boys enrolled in same. Only singing 200 हो जाएगा. So that is how much? 182. ओके. तो इन लोग ने वैसे दिया है. तो नॉर्मली टुगेदर कैसे होता है? ये सम मेथड होता है. क्लासेस टुगेदर है मतलब हम सब कुछ गिनेंगे. तो इनके हिसाब से बस ये दोनों पार्ट, ये दोनों जो पार्ट है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पार्ट का टोटल ही है 156. सिंगिंग प्लस डांसिंग, जहां पे सिंगिंग डांसिंग दोनों आते हैं वो. ओके. नहीं केशव, लिसन. What we have been told are enrolled in singing and dancing together. अगर सिर्फ ये होता ना, तो इसमें क्या लिखा था? Are enrolled in only singing and dancing. यहां only is a very important keyword. आगे देखते हैं. चलो आगे देखते हैं. सब में बहुत बार ऐसा वर्ड से खेलते वो लोग. बाद में 1/13 of the boys are enrolled in all 3 classes together. 1/13 कितना आ जाएगा? 1/13 will be how much? 70. तो ये बीच वाले पार्ट को 17 लिख देते हैं इधर बाजू में, इक्वल्स टू 70. The respective ratio of boys enrolled in dancing and painting classes together to the girls enrolled in the same is 2:1. Dancing and painting to girls enrolled in the same is 2:1. तो इधर 2 and इधर 1 लिख देते हैं. For now, let's keep it that way. 10% of the girls are enrolled in only dancing, whereas 8% of
Girls are enrolled in both dancing and painting classes together. Let's see. 10% of girls are enrolled only in dancing. So कितना आ गया 65 and 8% are involved in both of them together, dancing, painting together. 8% कितना हो जाएगा? How much will be 8%? 52. So this is 52. So इधर कितना हो जाएगा? 104. Let's move ahead. The remaining girls are enrolled in all three classes together. रहने देता अभी के लिए. The number of boys enrolled in singing and dancing together is 50% of the number of girls enrolled in the same singing and dancing together. अभी के लिए let's try and find out कि कितना हो रहा है. Total देख लेते हैं कितना होगा. If this is 156 plus 182, पहले total कर देते. Let's take this as 52. And this as 1. अगर वो number 650 total हो रहा है ना, if it is believable, तो फिर जाते हैं सिर्फ इसके साथ. Otherwise we'll have to take both of them combined. हेमंत हमें बोला है the respective ratio of boys enrolled in dancing and painting, ये इधर, to the girls enrolled in the same is 2:1. समझ रहे हो? तो if this is 52, so this has to be 104. डबल हो गया. समझे हेमंत? चलो let's find out the total. Somebody please give me the total. ये टोटल 182 130 182 130 312 plus 65 377 plus 52 427 429 plus 156 156. That is how much? 585. तो अभी के लिए फॉर नाउ लेट्स कीप इट दिस वे कि ये सिर्फ ये दोनों आएंगे. जिस सब में थोड़ा वर्डिंग का इश्यू है तो वैसे ले लेते हैं. 156 इधर ले लेते हैं एंड दिस इज 52. सो ये कितना आ गया? हाउ मच इज द रिमेनिंग पार्ट गाइस? टोटल कितना आया था मैं भूल गया. हाउ मच इज द टोटल गाइस? मैं भूल गया. टोटल कितना था सबका? 585 ना. तो 585 6 and 630 85 15 65 आ गया. सो बीच वाला पार्ट हो गया 65. नहीं पर ये वाला भी बाकी है ना, तो वी कांट से एनीथिंग. अभी के लिए कुछ बोल नहीं सकते गाइस. हम स्टिल द सम इज वेरी एम्बिगुअस. सिंगिंग एंड पेंटिंग का नहीं पता है ना, इसलिए. चलो डांसिंग पेंटिंग टुगेदर, सिंगिंग पेंटिंग. Did we miss out some information, guys? 20% of the girls are enrolled in only painting classes. 10% of boys are enrolled in only singing classes. 24% of girls are enrolled in singing and dancing together. The number of girls enrolled in only singing classes is 200%. Only 1/13 of the boys are enrolled in all three classes together. The respective ratio of dancing and painting classes together to the girls enrolled in same is 2:1 to 104. 10% of the girls are enrolled in only dancing classes, whereas 8% are enrolled in dancing and painting. सही है. The remaining girls are enrolled in all three classes together. The number of boys enrolled in singing and dancing together is 50%. तो इधर हम 0 ले लेंगे. We'll have to take this as 0 because इसके बारे में कोई information ही नहीं दिया है. And this is 65. अब इसमें देख लो. The number of boys enrolled in singing and dancing together is 50% of the number of girls enrolled in the same. तो इसका आधा हो जाएगा. That is how much? 78. The remaining boys are enrolled only in painting class. तो यहाँ वापस 0 हो गया. तो यहाँ कितने आ गए guys? What is this? सिर्फ पेंटिंग कितने आ गए? अच्छा 8 आ रहा है क्या? I'm trusting you with this, huh? Ved, are you sure कि ये 8 है?
आई डाउट। 8 कहाँ आएगा तू बोल रहा है? बगल में यहाँ पे। हाउ कैन से यहाँ पे 8 आया? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं अभी तक। हाँ 385। तो ये आ जाएगा अपना टेबल फॉर नाउ। आई गेस दिस विल बी इक्वली इजी, मतलब हम ये इक्वली हो जाएगा, हम टेबल से करें या फिर वेन डायग्राम से करें। अगर टेबल बनाना होगा ना तो विल हैव टू डू इट दिस वे, मतलब इफ एट ऑल वी मेक अ टेबल, तो वेट मैं टेबल दिखा देता हूं कैसे बनेगा इसका। इसमें टेबल में बहुत सारे वो बन जाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे टेबल के, सो टेबल बनाना इनफैक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए। सो आई गेस दिस इज अ बेटर वे टू डू दिस, ऐसे ही करना पड़ेगा, वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव। चलो we'll move on to the next part. This was very calculation intensive. हाँ वेट ऑल 70 है ना, बट हमें ऑल ऑलरेडी दिया है कि 70 है, so we can't say much about it because here we took 156 ना, so that is why we can't say a lot. नहीं वेद वैसे नहीं आएगा, you are wrong there. Okay, so guys this was one sum which would have been a little better left. ये वाला थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन था, but guys तुम लोग को सम समझा क्या? Did you understand the sum? This is very calculation intensive and it has two Venn diagrams, तो दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना पड़ता है. So this is better off left in which category? ये किसमें आएगा? बोलो गाइस ABC किसमें आएगा ये? जल्दी जल्दी जल्दी. For everyone who's saying B, you guys are absolutely wrong. This is a 100% sure shot C level का क्वेश्चन. जब तुम लोग को दिखा ना कि दो वेन डायग्राम्स बनाने हैं, दो वेन डायग्राम्स, तो समझ जाओ कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बिकॉज हर एक वेन डायग्राम को अलग अलग से बनाना पड़ेगा ना. ऊपर से देयर इज द एम्बिग्यूटी विद द क्लासेस टुगेदर वाला थिंग. So that is why this is for sure a C level का क्वेश्चन, not an A और a B level का क्वेश्चन. समझे मेरी बात गाइस? चलो अब ये आंसर्स ढूंढ लो. Now this sum looks like a very simple चिंदी sum, but इसमें क्या है, हमें जो मेन प्रीमाइस है ना उसमें कम इंफॉर्मेशन दिया है. यहां पे हमें काफी कुछ मिल जाएगा. So we'll make a very simple table for this, a very simple table. The ratio of males, females, children is this much. Literate, illiterate. Males, females, children. And total लिख देंगे. Okay? सॉरी, टोटल हमें पॉपुलेशन दिया नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो दिया है. इट इज टोटल इज 10:11:10:9. सो ये 11 है, ये 10 है और ये 9 है. इन स्टेट ए, आउट ऑफ विच 40% मेल्स आर और 880 आर लिटरेट. टोटल मेल्स जितने भी है समझो x, तो 0.4 ऑफ देम दैट इज 880, सॉरी 8800 आर लिटरेट. 20% चिल्ड्रन आर इलिटरेट. तो समझो अगर ये y है so this will be 0.2 y, and 30% females are literate, so 0.3x. अब समझो अगर ये 40% है 8800,
तो ये कितना हो जाएगा? 30% कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 6600। सीधा रेशियो का इस्तेमाल करेंगे ना हम, वी विल स्ट्रेट अवे यूज रेशियोज। अगर ये 40 और ये 30% है, अगर ये 40% है, ये कितना हो जाएगा टोटल? हाउ मच विल बी दिस? बोलो। 22,000। ये केशव जीरो किधर गया? 2200। ध्यान से रख केशव, डोंट गेट वेरी कंप्लेसेंट। सी कितना हो जाएगा? 8,800, 6,600, 14,000, 15,000, 15,400 हो गया। 15,400 इसमें से माइनस कर देंगे, बदले हाउ मच? 6600 अगेन, ये आ गया। वेद कैलकुलेशन गलत है, ध्यान रख कैलकुलेशन का वेद। हाँ 30% रिमेनिंग है, वी कैन ऑल्सो डू इट दिस वे। चलो, नाउ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 10 years of age is 10% of the number of females. Number of females, children below 10 years of age. तो इसका हम ज्यादा बोल नहीं सकते। 5% of the total population of states are below poverty line and 80% of them are illiterate. 80% of the population are illiterate. If this is 80%, so this will be how much? 20%. अगर ये 20% है, ओके गाइस, इसमें एक और चीज है, इसमें एक चीज हम मिस कर रहे हैं। Okay guys, tell me, there is one thing that we have missed out. Please look at the question and tell me what have we missed out. Tell me very fast what have we missed out. I'll give you 3-4 minutes. हमने इस सब में एक गलती किया है, क्या किया है? I just realized it. जल्दी बोलो। Yes, Devina. Perfect. Guys, can you read Devina's message? No, children can be male and female, Ved. Okay. Devina, please send the message to everyone. Devina, please सबको मैसेज भेज। Exactly. Guys, do you understand where is the mistake? Children above and children below वो अलग अलग दिया है, so we can't just assume कि उन दोनों को हम सेम में ले लेंगे। तो ये तो हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमने क्या किया? सीधा चिल्ड्रन ले लिया, पर we can't do that. समझ रहे हो मेरी बात गाइस? सो वी हैव टू मेक इट डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो इसमें हम क्या करेंगे? विल नॉट मेक अ टेबल फॉर नाउ, विल स्टार्ट सॉल्विंग फॉर द नंबर्स। लाइक सीधा टेबल ऐसे भरना चालू नहीं करेंगे, विल स्टार्ट फिलिंग इट अ लिटिल डिफरेंटली। ओके, नाउ सी वेरी केयरफुली। ये थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं, सो दैट सबको समझे। We have been told the ratio of population of males females 10, out of which 40% males are, while this much are literate. Let's go again. एंड इसमें हम सिर्फ एक और एडिशन कर देंगे, चिल्ड्रन बिलो वाला। चिल्ड्रन में 2 बना देंगे। 11, 10, 9. Out of which we know that the 40% of males, that is 8,800, are literates. So what can we say about the total number of males?
हमने वो गलती किया कि 40% ऑफ मेल्स आर लिटरेट, सो दैट मीन्स यहां पे होना चाहिए था 22,000, सो दैट इज 8800 यहां पे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? 40% ऑफ मेल्स दिया है। हाँ guys, did you understand where did we screw up? We took total here because of the sum का framing, तो ये ऐसे होना चाहिए था। So tell me what are the number of illiterate males? 22,000 minus 8,000, 14,000, 14,000 minus 800, 13,200। अब बोलो 20% चिल्ड्रन आर लिटरेट, 20% चिल्ड्रन लिटरेट है, तो यहां पे 0.2 लिख देंगे, दैट इज 1.8। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगा ना रेशियो वाइज। एंड अगर ये 11 है तो 11 इंटू 2000 कर रहे हैं हम सब में, सो दिस विल बिकम 20,000, 20K, दिस विल बिकम 18K, 18,000। सो 18,000 का 20% देख लो कितना है। 18,000 का 20% इज व्हाट? 3,600 are illiterate, sorry, so 3,600 here। बाद में 30% of females are literate, literate 30% females 6,000, तो बचे कितने? टेल मी 14 एंड इसका निकालो 18, 15, 14, 400। The number of children below 10 years is 10% the number of females, so this is 2,000। समझ रहे हो गाइस? ये मुझे 2000 कैसे आया? Did you guys understand ये 2000 कैसे आया? धवल छोड़ के बाकी सब रिप्लाई नहीं कर रहे। I'm getting very less replies today। सुदीप 20,000 आया रेशियो से। अगर हमें पता है कि 11 वाला रेशियो इज 22,000, तो फिर अगर ये 11:10 है, सो 11 तो मतलब पर कितना हो गया? 2,000 ईच। सो इसका मतलब यहाँ पे 2,000 इंटू 10 कर देंगे, यहाँ पे 2,000 इंटू 9 कर दिया। समझा सुदीप? Hemant, 22,000, it's because we have been given the number of male literates is 40%, मतलब टोटल मेल्स में से 40% लिटरेट है, दैट इज 8,800। इफ 40% इज दिस मच, देन 100% विल बी हाउ मच? इसको इंटू 2.5 कर देंगे, सो दैट इज हाउ वी गेट 22,000। समझा हितेश? हितेश नहीं, हेमंत। हेमंत समझा क्या? 5% of total population of the state are below poverty line and 80% of them are illiterate. 80% of them are illiterate. So let's find the total number. Total कितना है? 40, 60, 62,000. Total population 62,000 है, तो illiterate कितने हो गए? Illiterates will be 620 into 8 into 80. समझ रहे हो? तो नीचे 00 लिख देंगे। 6, 1, 48, 49, 49600। अब 49600 में से इनको माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा ये नंबर। सो दिस विल बी हाउ मच? 27,200, 30,200, 3800। सो 3800 इसमें से माइनस करो, 19,600 माइनस 800, 18,800। नहीं, ये तो गलत हो रहा है, कुछ तो लोचा है। हाँ गलत है, कुछ तो लोचा है। ये समय कुछ तो कैलकुलेशन का लोचा आ रहा है। ओके गाइस, आई पुट अप द सम अगेन। मैं इसको वापस क्लास के बाद चेक करता हूँ। आई हैव टू चेक द सम अगेन। इलिटरेट का 80%। अच्छा, नहीं, हाँ, we have been given below poverty line और above poverty line, BPL and APL दिया है ना, so that means इसको हम डिवाइड करेंगे दो में, below poverty line और above poverty line,
एंड उनमें से बिलो पॉवर्टी लाइन के इतने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के 80% आर इलिटरेट. सो दिस इज केस में केस. सो काफी ज्यादा है इसमें कैलकुलेशन. लेट्स डू इट, लेट्स फिनिश इट. ऑल्दो दिस विल अगेन गो इन द सी कैटेगरी, बट वी विल फिनिश द सम. Yes, again a C type sum. This is again a C type sum. But guys, did you understand one thing? For a sum which looks so small, did you understand the amount of calculation this has? Like even I myself would have taken this in the A or the B type while solving. जब मैं टेबल करने बैठता ना, तब मुझे पता चलता that this is a C type question. It is only when I solve it. But what you have to do, what you have to understand. Okay guys, बोलो अगर हमने इतना कैलकुलेशन कर दिया है, so then is it worth solving the sum to find the answer? अगर हमने ऑलरेडी इसमें 2 मिनट डाल दिया है. गाइस बोलो अगर मैंने ऑलरेडी इसमें 2 या 3 मिनट डाल दिया है पूरा कैलकुलेशन करने में अभी तक, तो बाद में मुझे ये सम कंप्लीट करना चाहिए क्या? इफ आई रियलाइज दैट दिस इज अ सी टाइप क्वेश्चन. बोलो बोलो गाइस जल्दी. Exactly. Now, Sudeep and Rohit, you are absolutely right. You must understand that a sum which has so much calculation, which goes in the C category, you have to understand कि वो पूरा, एक मिनट ये कहा गया, you have to understand कि वो पूरा sum ही उन्होंने difficult type का set बनाया है. That means the questions, even the questions will be difficult level only, because questions के लिए भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा calculation लगेगा. Most of the times that is the case. When you understand कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है ना, वो 3 मिनट का रोना छोड़ दो एंड पूरा सम जाने दो कचरे में. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज तुम लोग इसमें कम से कम ये 3 मिनट डाला, तुम लोग कम से कम और 4 से 5 मिनट ये सम में डालोगे, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस एंड इंक्लूडिंग चेकिंग, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सम है तो तुम चेक भी करोगे. सो तुम्हारा ऑलरेडी इसमें 3 मिनट घुस गया है एंड ऊपर से तुम 4 से 5 मिनट डालोगे. सो तुम्हारा सम कितना हो गया? 7 से 8 मिनट का. एंड स्टिल यू डोंट हैव अ श्योरिटी कि तुम्हारा सम करेक्ट होगा. अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन इधर उधर हुआ, अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन यहां वहां हुआ, तो तुम्हें स्ट्रेट अवे आंसर तुम्हारे रॉन्ग आने लगेंगे, बिकॉज इतने सारे कैलकुलेशंस है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सीईटी व्हेनेवर यू हैव अ सम व्हिच यू सॉल्व हाफ and then realize कि this is a C type question, don't think कि तुमने इसमें ऑलरेडी टाइम डाला है. लीव द सम इमीडिएटली. प्रैक्टिस के लिए ये सम ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, बट डोंट सॉल्व इट फ्रॉम अ सीईटी पर्सपेक्टिव, एंड एटलीस्ट नॉट व्हेन यू आर इन सीईटी. With yes, even without looking at the questions, even without looking at the questions, you must understand कि ये डिफिकल्ट टाइप का ही देते हैं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? You will lose out on 3 मार्क्स ना, 3-4 मार्क्स जाएंगे चलेगा, बट वो 3-4 मार्क्स के साथ तुम्हारा 3-4 मिनट भी बच जाएगा. यू विल ऑल्सो सेव 3 to 4 मिनट्स, एंड वो 3-4 मिनट में तुम और इजी वाले क्वेश्चंस में से टाइम मार्क्स निकाल सकते हो. आई विल एक्सप्लेन दिस मोर क्लियरली व्हेन वी गो इन द एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला लेक्चर. ओके, सो या दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस वर्दी सम, बट नॉट अ सीईटी सॉल्विंग वाला सम. चलो. Okay, now this is an amazing sum. This is a really amazing sum. I just solved it before the lecture, just for you guys check करने के लिए. Okay, read the question. Tell me in the first 2 lines itself कि ये क्या बनेगा. Will this be a Venn diagram or a table? जल्दी बोलो, Venn diagram या table? जल्दी बोलो guys. This is the most important part of solving a caselet. You have to, and there are only 2 tasks which can happen. It can only be a Venn diagram or it can be a table. बाकी कुछ और नहीं आएगा. जल्दी जल्दी.
I'm loving that there are so many different answers. Yes, Hemant, you are right. Yes, Hemant, you are right. You are absolutely right. इसमें भी बहुत सारे केसेस है. इसमें भी there will be a Venn diagram which will have two Venn diagrams. समझ रहे हो? So इसमें हम क्या करेंगे? Staff and students. And students में भी males females हो जाएंगे. And teachers may be males females है. But except the only thing is in the teachers there won't be a Venn diagram. In the teachers we will make a table, and for the students we will make a Venn diagram. So this is a combination of Venn diagram and table sums. समझ रहे हो guys? हाँ, and staff में भी teacher and admin है. But staff wala will be done not with Venn diagram. The staff wala will be done only with tables. So this is admin and teaching. Staff wala will be table. Staff का table ऐसा बनेगा. Admin, teachers, males, females, and the total number that we have been given is 240. And for the students, we will make two Venn diagrams, which will be a total of 1600. जिसमें languages का आएगा, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ आएगा. Okay? Let's start the sum. Yes, Hemant, this sum is a difficult one. Although it is not as difficult as the previous wala sum. I explain why. इसमें देखो languages कितनी है? How many languages are there in the Venn diagram? बोलो जल्दी guys. There are only 2 languages. And this is why this sum will not go in the C category. This sum will be in the B category. So let's start solving. Chalo. In a school, there are 240 staff members and 1600 students. 65% of the number of staff members are teachers and remaining staff members are administrative officials. 240 teachers, administrative. Teachers कितने हैं? 65%. So 65% of 240 will be how much? बोलो जल्दी. 65 of 240 will be how much? ट्वेल्व इंटू 13 कितना आ गया? जल्दी बोलो. 12 इंटू 13 इज 156. बचे कितने? 84. So we know the breakdown of this. And इसमें out of the total number of students, 45% are girls. 1600. 45% are girls. 45% ढूंढने का इसी तरीका क्या है? 50% minus 5%. That is how you will find the 45%. तो बोलो 50% कितना आ जाएगा? 800. 800 minus 80, 72. 720 are girls and these are boys. तो boys कितने हो गए by default? 880. 20% of the number of girls can speak only English. इसमें बनाते हैं Venn diagram. English and Hindi. 20% speak only English. तो कितना आ गया? 144. Remaining girls can speak both Hindi and English. तो ये वाला 0 है. तो ये कितना आ गया? What is this? 720 minus 144. 3/4 of the number of boys can speak only English. English
हिंदी. 3/4 बॉयज स्पीक ओनली इंग्लिश, सो दैट इज 660. तो ये कितना आ गया 220. ये हो गया 0. 2/3 of the number of teachers are males. 2/3 of this are males. तो इसमें मेल एंड फीमेल. जल्दी बोलो 2/3 कितना आ जाएगा. हाँ गाइस 104. वन थोड़ा बाजू में दिख नहीं रहा है. आई ट्राई टू राइट इट इन अ मोर सिंपल वे. और थोड़ा बाजू में 104. तो ये कितना आ गया 52. एंड ये कितना आ गया 720 माइनस 144. 72 माइनस 14 करो. 580 माइनस 4 576. 576 सही है. 5/14 of the number of administrative officials are females. 5/14 बोलो 5/14. 7 into 12, 7 into 2, 6, 30. So 30 are females and बाकी के 54 are males. This is your overall solution. समझे guys? A little time consuming, but it is very much doable, and that is why this will be in your B category. समझ रहे हो guys? Did you understand? Was the entire sum understood guys by everyone? Let's move on to the questions. What is the difference between number of boys who can speak both Hindi and English and the number of girls who speak both Hindi and English? 220, 576. कितना हो गया 356. Option B. The total number of girl students is what percent of total number of staff members in the school? Total girl students is what percentage of total staff members? ये 240 है और ये 720 है. So कितना percentage हो गया? It is how much? Triple ना? Raj गलत. Total girls are what percentage of the total staff? So it has to be 300% because ये उसका triple है. राज mistake समझा तुझे? Did you understand the mistake, Raj? Good. So second one. What is the difference between total number of female administrative officials, female teachers, and the male administrative officials? Female admin, female teachers, and male. So 156 plus female admin, 186. अच्छा 156 and एक मिनट फीमेल एडमिन एंड फीमेल टीचर्स. अच्छा इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं 82 एंड 104. कितना आ गया डिफरेंस 82 एंड 104 का? जल्दी बोलो 22. एंड फाइनली लास्ट वाला. What is the ratio of total number of teachers to the number of boys who can speak English only? Total number of teachers to the boys who speak only English. 156 to 660. Guys, what is the fastest way to do this? Guys, सबसे फास्ट तरीका क्या है करने का? जल्दी बोलो गाइस. क्या परसेंटेज? रोहित टेल मी द वे टू डू दिस. ऐसा आधा अधूरा मत बोलो. सिंपल समझ लो. द फास्टेस्ट वे इज लुकिंग एट द ऑप्शंस and getting that 13 is compulsory.
देख रहे हो तुम लोग, सारे में 13 तो है ही ना, इसका मतलब हम इसको सीधा 13 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। सो टू फाइंड बाजू वाला नंबर वी विल डिवाइड दिस बाय 12, दैट विल गिव अस बाजू वाला नंबर, दैट विल बी हाउ मच 55। समझे गाइस हाउ टू यूज द ऑप्शन? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सबको समझा क्या? ओके राज, मैं तेरे लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। हमें रेशियो कितना पता है? 156 डिवाइड बाय 660, सही है। तो हम पहले ऑप्शंस देखेंगे क्योंकि इसमें डिवाइड करना बहुत टाइम लग जाएगा। पहले देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, 13 है ना सब में, सो हम 13 को कंफर्म गिन लेते हैं, 13 इज टू समथिंग, तो ये क्या है 13 इंटू 12। तो रेशियो में है तो ये भी इंटू समथिंग इंटू 12 होना चाहिए ना। अब दिस इज 13 इंटू 12, तो ये 12 से डिवाइड करो तो ये वाला नंबर आ जाएगा 55। सो दैट गिव्स अस द आंसर इज 13 is to 55। हेमंत, यू कांट से कि नन ऑफ दीज का कितना प्रोबेबिलिटी है, दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, यू कैन नेवर लेट गो जब नन ऑफ दीज होता है, ऐसा तुम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द 7th सम। 6th सम तुम लोग करो, 7th सम करता हूं मैं। 7th है, 8th सम है, ये भी बहुत मस्त है। ओके गाइस, लेट्स सॉल्व द 7th सम। ओके, चलो। Data regarding the number of employees in various department, company P and Q in the year 2018. Both companies have 6 departments. तो क्या करेंगे? We will make, guys क्या करेंगे? टेबल ना, कितने डिपार्टमेंट्स है? 6 डिपार्टमेंट्स। 6 डिपार्टमेंट्स का तुम लोग वेन डायग्राम बना सकने वाले हो? सोच लो। नहीं। So what will we do? We'll make a table, इसमें P, Q and total ऐसे कर देंगे। डिपार्टमेंट्स तीनों लिख देते हैं, अरे 6 के 6 लिख देते सारे डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन, HR, R&D, मार्केटिंग, अकाउंट्स, एंड फिनेंस, सॉरी फिनेंस भूल गया मैं। प्रोडक्शन, HR, फिनेंस, RMA, and here is total. Guys, this question is absolutely calculation intensive, हाँ? मतलब इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट इसमें सबसे ज्यादा काम है रेशियोज का। This will be what? Company P and company Q, and this will again be total. Total employees of company P is 18,000, 18K. In company P, number of employees in HR and finance together is 60% of total employees. HR and finance, that is 60%, 0.6x. So for now, let's write it ऐसे। अच्छा, प्रोडक्शन, HR एंड फाइनेंस, ये तीन का हो गया 0.6x, तो ये तीन का 0.3x हो जाएगा। The number of employees in R&D, marketing and accounts were how much? 2600, 2880 and 1720। ये तो अपना काम उन्होंने बहुत इजी कर दिया।
The number of employees in production department was 25% more than that of finance department. प्रोडक्शन के फिनांस से 25% ज्यादा है. सो लेट्स राइट इट ऐसे है. इसको लिख देते हैं 100, इसको लिख देते हैं 125. एंड ये जितना बच गया दैट विल बी रिमेनिंग. इसको अभी के लिए ऐसे डैश डैश मार देते हैं. इन कंपनी क्यू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग वाज 1800 and they and consider 12% of the total number of employees. If 12% is 1800, so guys, how much is the total? Bolo jaldi. If 12% is 1800, so what is the total? Exactly 15,000. Does anyone have a doubt? मैंने कैसे किया? 1800 into 100 by 12. This is 12 into 1.5 into 100. So 1500. 150. तो 150 into 100. समझा सबको? हेमंत ऐसे किया मैंने. This is 12 into 150. Did you understand, हेमंत? हाँ, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया. वैसे ही करने का. दैट इज द ओनली वे टू डू इट. चलो. द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग वाज 40% दैट लेस देन दैट ऑफ एचआर डिपार्टमेंट. इफ दिस इज 40% लेस देन एचआर डिपार्टमेंट, तो हम एचआर डिपार्टमेंट कैसे ढूंढेंगे? दैट मीन्स दिस इज 60% ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट. समझ रहे हो? इफ दिस इज 60, तो व्हाट इज 100? सो 1800 into 100 divided by 60, 3000. The number of employees in production department of the company was 10% less than the same department from company P. 10% less है, तो इसमें कितना कम हो जाएगा? ये 125 है. So this will become how much? 112.5. Exactly 12.5 कम हो जाएगा. राज, you are right. The number of employees in accounts is 1000. And the number of employees in finance and R&D department is same. Finance and R&D दोनों same है. So this will be Y and this will be Y. Total number of employees in finance and R&D together were double of total number of employees in marketing and accounts together. एक मिनट, ये 100 है? अच्छा हाँ, वैसे टोटल ऑफ कौन सा? पहले मार्केटिंग एंड अकाउंट्स टुगेदर निकाल लेते हैं. हाउ मच इज दिस? 80 and 46. 4680 plus 2720. So what is the total? इन दोनों का टोटल कितना हो गया गाइस? गाइस बोलो, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? कैलकुलेशन बहुत स्लो हो रहा है गाइस तुम लोगों का. 7400. यस, यू आर राइट. धवल, हाँ, धवल एंड हेमंत, यू आर राइट. राज, तुमने गलत किया कैलकुलेशन. यू फॉरगॉट द 80 and 20. आई एम प्रीटी श्योर तेरा वही मिस्टेक हुआ है. ओके, चलो. 7400 is marketing and accounts together, and the total number of employees in finance and R&D. Finance and R&D is how much? 7400 का double, that is 14800. Now let's see. Now what can we do? इन तीनों का टोटल ढूंढते हैं. क्या बोल रहा है राज? राज तो गलत बोल रहा है. ध्यान से पढ़ क्वेश्चन. Together. Now I missed out on one thing.
सॉरी, किधर बोल रहे हो तुम? इन तीनों का टोटल ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, इन तीनों का पहले टोटल निकाल देते हैं। इन तीनों का टोटल गाइस विल बी हाउ मच? पी के ये तीन कंपनीज का टोटल विल बी हाउ मच? 10800. नाउ 10800 इज हाउ मच? 60%, 0.6x, जिसमें से ये 100 है और ये 125 है। सो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 225। पर उससे हमें h का क्या मिलेगा, मैं वो सोच रहा हूँ। इसमें क्या कर सकते हैं? Now guys, let's figure out कि इसमें हम किधर कुछ मिस आउट कर रहे हैं. There has to be something that we are missing out on, some clue. Let's read the question again. Number of employees 18,000. Company P, number of employees in production HR 60% of total number of employees. The number of employees in R&D, marketing and accounts were this much. The number of employees in production department was 25% more than the finance department. In Q, the number of employees in marketing क्या बोल रहा है धवल? धवल, we can't do that. तू ये कहां से assume कर रहा है? How are you assuming that? The number of employees in production department was 25% more than the finance department. In company Q, the number of employees in marketing is 1,800 and they consider 12% of the total number of employees. The number of employees in marketing is 40% less than that of HR department. सही है. The number of employees in production from company Q was 10% less than the same in company P. Production. सही है. Number of employees in accounts is 1,000. The number of employees in finance and R&D department is the same. The number of employees in finance and R&D together. हाँ, वैसा करते हैं. क्या बोल रहा है केशव? What are you saying, केशव? I don't understand your doubt. सबका टोटल माइनस 15,000 आएगा ना ऐसे. Yes, केशव, you are right. पर हम तू ये कैसे ढूंढेगा? How will you do this? ये 100 और 125 है. We have taken them as 100 and 125x. So वो x को कैसे निपटेगा तू? Is what I am asking. That is something that we have to think. इसके लिए कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा. समझ रहा है मेरी बात? अगर इसमें ये नहीं मिल रहा तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस. अभी इसके लिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं. लेट्स नॉट ट्राई टू फिनिश द क्वेश्चंस. लेट्स नॉट ट्राई टू फिनिश द टेबल फॉर नाउ. ओके, दिस इज 7400 and this is 14,800. Let's try to go on to the questions. चलो, what is the difference between total number of employees in marketing and accounts in together in company P and what is the same courses together in company Q? Marketing and accounts. दोनों का डिफरेंस करना है ना? Tell me how much. इन दोनों का टोटल कर दो और इन दोनों का टोटल करो. 2,800 नीचे आएगा और ऊपर वाला क्या आ जाएगा? 45, 46, 4,600. The answer is how much? 1,800. अच्छा सॉरी, इधर ई लिख गया. That is option C, 1,800. 3/4 of the number of R&D employees in company P was female. R&D company 3/4 were female. If the number of female R&D employees in company P is less than the company Q by 350, what is the number of male R&D employees in company Q? देखो, इसके लिए हमें टेबल सॉल्व करना पड़ेगा. Let's move to the other questions. What is the respective ratio between total number of employees in finance and production together in company P and the same courses together in company Q? मतलब इस टेबल तो कंप्लीट हो रहा है, अपना क्या मिस आउट हो रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ. You are missing out on something.
1.25 1.75 ओके धवल तू बोल तू क्या बोल रहा है assume that this is 1.25 this is 1 and this is 0.75 so what you are saying is हम इन तीनों का टोटल 3 कर देते हैं that is 30 right so you are saying तीनों का टोटल हम 300 कर देते हैं 300x so 300x will be 10800 so that will be x will be how much 36x तू ऐसा बोल रहे हैं ना but then how are you assuming 0.75 that is my question you can't assume that let's try finding अगर तूने ये assume किया let's try finding कि वो assumption से हमें आंसर है क्या सर हाँ सर सर तीनों का टोटल 10800 है ना हाँ तो हेलो हाँ तो तो क्या फिर तीनों का मतलब एक्स अगर एक्स वेरिएबल लिया तो फिर वैसे कर सकते हैं ना 1.25 मैंने आगे कैलकुलेट किया तो आ रहा है आंसर इसके लिए that is an assumption that you have made मतलब इसमें वही करना पड़ेगा इसमें we will have to assume there is no other way except for assumption अगर assume करके बाकी तेरा टेबल पूरा खुल गया है ना तो that is right but if not then वापस तुझे करना पड़ेगा assume do you understand what I'm saying हाँ सर हाँ मतलब बाकी जगह भी हो सकता है कुछ इशू बाकी जगह बट फिर अगर वो उसके अलावा कोई है नहीं ऑप्शन तो फिर वो करके देखते हैं ना assumption ही करना पड़ेगा ठीक है चलो so we'll take this 75x so this will become how much 3600 एक मिनट पहले धवल प्लीज म्यूट कर this will become 3600 this will become 3/4 of that will be how much 2700 and ये कितना हो जाएगा प्लस 3/4 मतलब इसमें 900 ऐड हो जाएगा दैट विल बी 4500 इसमें से 450 माइनस कर देंगे 10% माइनस किया था इसलिए सो दैट विल बी 4050 फिर बाद में ये दोनों ढूंढना पड़ेगा 2800 5800 98 9880 9850 9850 and finally 1500 तो ये कितना हो जाएगा how much will be total इन दोनों का what is the total of these two फाइव वन फाइव जीरो सो 5150 को हाफ कर देते हैं यहाँ पर देख धवल तेरे हिसाब से अगर किया ना तो इन दोनों का टोटल 5150 आ गया सो लेट्स ऐड दिस अप टू फाइंड कि इन दोनों का बराबर आ रहा है या नहीं टोटल राज नहीं 5150 इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा सो देन वी शुड हैव 14800 उस हिसाब से इफ धवल इज राइट इफ द अजम्पशन इज राइट धवल समझ रहे हो मेरी बात कि दिस विल बी हाउ वी फाइंड आउट कि द अजम्पशन राइट है या रॉन्ग तो व्हाट वी कैन डू हियर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस तेरा अजम्पशन कर रही है हाँ नहीं 5150 करना ही पड़ेगा तो really how much 6200 plus 5150 that is not coming up to 14800 तो धवल तेरा assumption गलत है समझ रहे तू मेरी बात तेरा assumption क्यों गलत है हेलो हाँ धवल बोल हेलो हाँ बोल तो हाँ सर वो दोनों 36 और 26 ऐड करके 148 से माइनस करना है ना हाँ अगर तू वैसा करेगा तो तुझे ये हाँ तो फिर 80 टोटल गलत आ रहा है तो तेरा टोटल गलत आ रहा है ना हाँ तो 86 आ रहा है तो 86 आएगा ना तो 86 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा ना तो तेरा टोटल 59000 से ऊपर जाएगा 43 तो तेरा टोटल 15000 से ऊपर जाएगा मैं वो बोल रहा हूँ you have screwed up there with your assumption is what I'm saying
So what has happened is इस sum में कुछ ना कुछ तो miss out हुआ है. The place that I got this sum from, उधर एक point या तो miss out हुआ है, because there is no way that we can find the values all of them. Point miss out हुआ है. समझा? Yeah. So guys, इसमें एक ना एक point ये पूरे जो sum है ना question में that has missed out. I will check my source and get back to you उसमें क्या missing है. There is one point which has to be missing here. समझ रहे मेरी बात guys? There is one point which is missing here and I'm 100% sure कि वो one point है ना that has to be the y and y वाला. y and y के बारे में कुछ तो information देना चाहिए था. If that we get तो अपना पूरा sum solving easy हो जाएगा. Or we will have to do it. ये जो तीन दिया है ना 100 and 125 and this is x. वो बारे में करना पड़ेगा. इसका तीनों के बारे में कुछ तो information दिया रहेगा. That is why. धवल नहीं, you are wrong there. कुछ तो गलती है. इसलिए I'll do this and again जैसे मैंने टाइम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट में क्या मैंने एक्स्ट्रा सम करके डाल दिया था, वैसे मैं इसका एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा. जस्ट अभी लेक्चर के बाद ही मैं कर दूंगा. 10 बजे तक हो जाएगा तुम लोग का, मतलब अपलोड. ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, दिस क्वेश्चन आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू इज अ बी टाइप. 8th question is a B type question purely because this has money also included along with your overall ratios and everything. तो इसमें मनी और वो सब इंक्लूडेड है एंड प्लस ईयर्स का भी कैलकुलेशन है. ओके, नंबर ऑफ ट्रीज है, वो ट्रीज में से कितना रेवेन्यू निकलता है एंड उन सब का टोटल मिलके हमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. इंटरेस्टिंग सम बट वेरी अनोइंग एट दैट. Krishna distributed 10 acre land to Gopal and Ram, who paid him in the amounts of ratio 2:3. इसका मतलब दोनों को लैंड कितना गया? गोपाल एंड राम कितना कितना लैंड गया? 4 acre and 6 acre. Gopal invested further 2 lakhs in the land and planted this much and planted 11 trees in the ratio 5:1 on equal area of land. गोपाल ने 5:1 रेशियो में लेमन एंड ट्रीज डाला इक्वल एरिया में. सो दैट मीन्स हाउ मच उसने इक्वल एरिया किया, दैट इज 2 acre एंड 2 acre. इसमें लेमन एंड कोकोनट इन दोनों का उसने डिवाइड कर दिया. कितना? 5:1 के रेशियो में. सो देयर विल बी 5 लेमन ट्रीज फॉर एवरी 5 कोकोनट ट्रीज फॉर एवरी 1 लेमन ट्री. There is a total of 100 lemon trees. Okay? अगर 100 lemon trees है तो अपना ये कितना हो जाएगा? Coconut trees. How much is the coconut trees? 500. 500 coconut, 500 lemon. The cost of one coconut was 5 rupees. One coconut tree was 5 rupees. Cost. तो कोकोनट ट्रीज उसका कितने में हुआ टोटल? अरे सॉरी, कॉस्ट ऑफ वन कोकोनट, अभी के लिए नहीं, सॉरी. दिस इज व्हेन ही सेड कॉस्ट ऑफ वन कोकोनट विल बी 5 rupees. The crop took 7 years to mature and then the crop was reaped in 1997. इसका मतलब क्या? 7 साल तक जीरो इनकम एंड 8th year में he sold the crops. The total revenue generated was 25% of the total amount put in by Gopal and Ram together. इन्होंने जितना टोटल वैल्यू डाला ना उसका 25% वैल्यू. That means the price of 2.5 acre land. For now, let's keep it as X only. The revenue generated from the coconut and lemon trees was in the ratio 3:2 and it was shared equally by Gopal and Ram. So let's say कि इसका रेवेन्यू ढूंढने की ट्राई करते हैं. रेशियो Gopal invested 2 lakhs in the land and planted coconut and lemon trees 5:1. There is a total of 100 lemon trees. Cost of one coconut was rupees 500. The crop took 7 years to mature and the crop was reaped in 1997.
The total revenue generated was 25% total amount put by Gopal and Ram. The revenue generated from coconut and lemon trees was 3:2. So coconut से कितना revenue बना guys? What is the revenue by coconut? 2500. But we haven't been told कि कितना coconuts है. Per crop कितना coconut है? रुक जा. There is some other way to solve this. Wait. नहीं हमें एक मिनट रुक जा. अच्छा हाँ ये रहा. Initial amount spent by Gopal and Ram were equal. This is the clue point. समझ रहे हो guys? हाँ ये रहा. गोपाल एंड राम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्पेंट वर इक्वल. बट गोपाल ने एरिया कितना खरीदा? 4 एकड़. एंड राम ने एरिया कितना खरीदा? 6 एकड़. समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट डज दैट मीन? देख गोपाल ने जो 2 लाख एक्स्ट्रा डाला है ना, राम ने इतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं किया. बट राम का ओवरऑल एक्सपेंडिचर इज 4 एकड़ का प्राइस प्लस 2 लाख. समझ रहे हो? मतलब ओवरऑल जमीन का प्राइस क्या हो गया? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द 10 एकड़ लैंड? बोलो गाइस, जल्दी बोलो. नहीं हेमंत गलत. 10 lakhs. I'll explain why. Now understand, हमें क्या बोला है? गोपाल एंड राम का इनिशियल अमाउंट स्पेंट इक्वल था. बट इधर क्या लिखा है? कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू गोपाल एंड राम हु पेड हिम इन टोटल अमाउंट्स 2:3. मतलब गोपाल ने 2:3 अमाउंट, सॉरी उन लोगों को जमीन कितनी मिली? 4:3 में. दैट इज 4 एकड़ एंड 6 एकड़. एंड गोपाल ने 2 लाख का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया. एंड तब जाके इन लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट सेम हो गया. मतलब गोपाल ने 4 लाख की जमीन ली और 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया. एंड रोहित ने 6 लाख की जमीन ले ली. सो दैट इज द सॉरी टोटल जमीन का भाव हो गया 12 लाख. समझ रहे हो गाइस तुम लोग? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? And now we have been told the total revenue generated was 25% of the total amount put in. That is 3 lakhs. 3 lakhs is the total revenue. जिसमें से the revenue generated from coconut and lemon trees was in the ratio 3:2. 3:2 के ratio में था. That is divided by 5. So revenue generated by coconut trees was how much? 1.8 lakhs. And by lemon trees was how much? 1.2 lakhs. समझ रहे हो गाइस मेरी बात? Did everybody understand this? I know it's a little confusing, but तुम लोग को समझा क्या कर रहा हूं मैं? अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है. What is the ratio of yield per acre land? अब बोलो, दोनों की एरिया अलग अलग है क्या? Are the areas for both of them different? दोनों का एरिया तो सेम ही है, 2 एकड़. तो what will be the ratio of the yield? The ratio of yield will be the simple ratio of the overall profit from them. That is 3:2. ये समझा सबको? समझे गाइस? कोकोनट के टोटल ट्रीज कितने थे? 500. लेमन के 100. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट पर ट्री फॉर कोकोनट्स? वैल्यू ऑफ आउटपुट पर ट्री. एक ट्री में कितना कमाया वो? 3600. 3600 इंटू 500 किया तो आएगा ना 1.8 लाख. समझे गाइस? सॉरी 360. Because 360 and 500. So
इट विल बी 180. हाँ तो सही है 1.8 लाख. द आंसर इज 360. जीरो का मिस्टेक हुआ थोड़ा. What is the amount received by Gopal in 1997? गोपाल को कितना पैसा मिला? गाइस गोपाल को कितना पैसा मिला? How much did Gopal get? Exactly 1.5 lakhs. Raj, you are right. Because we are being told they divided the money equally. तो divide by 2 कर देंगे total revenue को. Fourth one. What was the value of output per acre? अरे यार ये तो आंसर दिख रहा है. Shit. ये पीछे है. What was the value of output per acre of lemon tree planted? Per acre. बोलो कितने एकड़ है? 2 एकड़. रेवेन्यू कितना है? 1.2 लाख टोटल. तो पर एकड़ कितना हो गया? बोलो जल्दी गाइस. यस 0.6. It has to be that. 0.24 lakh per acre. None of these होना चाहिए. Per acre of the lemon tree planted. चलो हाँ तो it should be half of this. That will become 0.6 lakhs. Because total lemon का कितना है? 2 acres है. And total revenue is 1.2 lakhs. समझ रहे हो? And finally, E. What is the total output of coconuts? Coconuts कितने बने? There is 1.8 lakhs, which is the total revenue, divided by 5. Because 5 rupees per coconut है ना? समझ रहे हो guys? Guys, did you understand? तो कितना आ जाएगा? What is the total output of coconuts? 1.8 lakhs divided by 5, which will be how much? Exactly, this one. ये जो नीचे लिखा है उस पर ध्यान मत दो. That is wrong. ये दिया है वो गलत है. Did you guys understand the whole sum, guys? ये किसी और सम का मैंने डाल दिया इधर. Guys, पूरा सम समझा क्या? Guys, I'm still waiting for answer. तुम लोगों को समझा पूरा सम? हाँ ये सम थोड़ा अलग है. ये सम ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा था. मतलब ऐसा थोड़ा अलग टाइप के सम. आज का ओवरऑल क्लास वाज द लेक्चर which took me the most effort to find the sums. Okay, in this now there are 2 questions which I have to correct ना. वो 2 questions मैं correct कर देता हूँ. यस हेमंत, रिकॉर्डिंग वापस देखना पड़ेगा. ये वाला लेक्चर तुम्हें घड़ी घड़ी रिवाइज करना पड़ेगा. ओके तो गाइस आई गेस विल इसमें जो मैंने एक सम छोड़ा है वो एक सम तुम खुद से प्रैक्टिस के लिए करो. धवन प्लीज मैसेज मी इन प्राइवेट कि मुझे कौन सा वाला सम में वो सुधारना है मिस्टेक. सो आई विल चेक द सम अगेन एंड डू इट वापस. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आई गेस द क्लास इज डन फॉर टुडे. Did you guys understand आज का sum totally? And this one is your homework. पहले guys बोलो. First sum will it be table or Venn diagrams? बोलो जल्दी. सुदीप सीईटी में 4 से 5 DI के टेबल DI के सेट्स आते हैं. Out of the 5 DI sets,
you will have two caselets, one or two caselets. You will have two for sure visual. Visual का मतलब you will have graph और pie और बार, एंड बाकी का जो एक या दो बच गया ना, वो तुम्हें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स. Yes, for whoever saying the first one is table, you are right. That is the homework for you guys, and you have to send it to me preferably by tomorrow. I have the solution written down on my phone, so I'll be able to immediately reply to you कि सही है या गलत. Okay? चलो. I have checked the sum myself. The sum is right, but थोड़ा हटके है. The calculations are a little difficult. Okay, the first sum is legit difficult. I would say the ideal time is 6 to 7 minutes. चलो 8 मिनट भी ले लो. 8 मिनट भी कर दिया तो आई बी हैप्पी. द फर्स्ट सम इज डिफिकल्ट, बट इट इज ओनली प्योरली कैलकुलेशंस. समझे गाइस? सो या आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर नाउ. बाकी तुम लोग को कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो.